Welcome to Triangle Part 7 for Class 10 Mathematics. In the previous part 1 to 6, we discussed about similarity of two triangles, Thales theorem, its converse, and many more results related to similarity of two triangles. In this part, we want to review all those results once again. Let us see what are those results. First of all, we read if two triangle, one is suppose triangle ABC is similar to triangle PQR. This is the symbol for similarity of two triangles. If these two triangles are similar, then first of all their corresponding angles are equal. Corresponding angle means angle A its corresponding angle P, angle B its corresponding angle this angle Q, angle C its corresponding angle R. These corresponding angles are equal. And secondly, ratio of their corresponding sides are equal. Ratio of their corresponding side means AB and PQ are corresponding sides, so their ratio equal to BC and QR are corresponding sides. Okay, and similarly AC by PR are corresponding sides. So ratio of these corresponding sides are equal. If triangles are similar, corresponding angles must be same and ratio of their corresponding sides must be same. This we have read. And if ratio same, corresponding angle same, then triangle must be similar. Okay, it is true from both sides. If this happened, then triangle must be similar. But all these 6 things, 1, 2, 3, 4, 5, 6, all these 6 things are always not required. By using some limited things, we can say two triangles are similar, and those are called criteria for similarity of two triangles. So first criteria is your AAA criteria. Criteria, its singular is criterion. 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 AAA criterion. Criterion is singular of criteria. Criteria plural है, ये singular है. AAA criterion. By using this criterion, if in between two triangles, दो ट्रायंगल के बीच में अगर इसका corresponding angle equal है, corresponding angles are equal, then both the triangle become similar. खाली एंगल बराबर हो गया तो सिमिलर होगा, ये साइड्स का रेशियो अपने आप हो जाएगा. सेकंड है SSS क्राइटेरियन. बाय यूजिंग दिस क्राइटेरिया, इफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम, बोथ द ट्रायंगल बिकम सिमिलर. जैसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए ये है, तो ये दोनों का रेशियो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर ये है तो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो, साइड्स का रेशियो अगर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो खाली सेम है, तो एंगल अपने आप इक्वल होगा और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा. थर्ड क्राइटेरिया है SAS क्राइटेरियन. दो साइड्स का रेशियो और उसका इंक्लूडेड एंगल. जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये दोनों साइड्स का रेशियो और ये दोनों साइड्स का रेशियो सेम है, और ये दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल इसके इंक्लूडेड एंगल के बराबर है. ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों साइड्स का रेशियो, ये दोनों साइड्स का रेशियो बराबर हो और दोनों का इंक्लूडेड एंगल बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा. दिस इज कॉल्ड SAS क्राइटेरियन. दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ और इंक्लूडेड एंगल must be equal, then both the triangle becomes similar. If in between two triangles, ऐसा दो ट्रायंगल है,
if two angles are equal, this angle is equal to this angle is equal to this, then what will be? Third angle will be automatically equal, and hence both the triangle become similar by AAA criteria. So if two angles of a triangle are equal to the corresponding two angle of another triangle, then both the triangles are similar. एक का अगर दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है तो दोनों सिमिलर होगा, क्योंकि तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा. ठीक है. सो दीज थिंग्स वी हैव रीड अबाउट सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स. देन आफ्टर एक बार रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या रिजल्ट इसमें पढ़ा गया है, उसके बाद आगे सवाल बनाएंगे. तुरंत 10 मिनट में हो जाएगा. So these were the criterion for similarity of two triangles. Then after we read Thales theorem. What was Thales theorem? There is a triangle ABC, suppose. Okay. In this triangle, if we draw a line parallel to any one side of the triangle, let us take this AC side, and parallel to this AC draw a line. A line is drawn, this line is parallel to AC, intersecting other two sides at D and E. Then this line divide these two sides AB and AC in the same ratio. This is what is Thales theorem. If this line is parallel to AC, then BD by DA will be same as BE by EC. If this line is parallel to this, you can write AD by DB. This will be equal to CE by EB. AB हो सकता है. You can also write AB पूरा AB by BD will be equal to BC by BE. ये भी हो सकता है क्या? आप ऐसा लिख सकते हैं पूरा AB बाय AD, ये इक्वल टू पूरा लिख सकते हैं इधर BC बाय ए CE या EC जो कर दीजिए. सो इन दिस वे ऑल दीज रेशियोज विल बी सेम. अगर एक ट्रायंगल का एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो दिस लाइन डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये रेशियो, ये दोनों का रेशियो इक्वल टू ये दोनों का रेशियो, वहीं से ये सारा रिजल्ट आ जाता है. ये दोनों, इसका और इसका रेशियो अगर इसके और इसके रेशियो के बराबर है तो इसका और इसका इसके और इसके बराबर होगा. फिर ये पूरा बाय दिस इक्वल टू ये पूरा बाय दिस होगा. ये पूरा बाय दिस इक्वल टू ये पूरा बाय ये दिस. तो ये सब चीजें होता है थेल्स थ्योरम से, है ना. यू कैन इजीली प्रूफ दिस थेल्स थ्योरम. ये जो थेल्स थ्योरम है इसको आप आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं. एंड प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम इज गिवन इन योर सिलेबस. सिलेबस में थेल्स थ्योरम का प्रूफ दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम में आएगा. प्रूफ देखिए कैसे करते हैं 2 मिनट में. देयर इज अ ट्रायंगल ABC, ओके, and suppose this is the line DE which is parallel to BC. ये DE जो है parallel है BC का. Then what will happen? आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि AD by DB ratio will be equal to AE by EC. ये है आपका थेल्स थ्योरम. ये चीज प्रूफ करना. देखिए, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस देन दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है,
this is a transversal, this is called a transversal which intersect both the line. Then these angles are called corresponding angles, and these corresponding angles are always equal. These angles are called alternate angle, these angles are also equal. Okay, sure. So if DE line is parallel to BC, these two angles are equal. This angle will be equal to this. And for this small triangle ADE and ABC, ये छोटा ट्रायंगल ADE और ABC में छोटा का एंगल D बड़ा का एंगल B के बराबर है, छोटा का एंगल E बड़ा का एंगल C के बराबर है, और ये जो एंगल है ये तो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, छोटा और बड़ा दोनों के लिए. सो ट्रायंगल ADE, दिस स्मॉल ट्रायंगल will be similar to triangle ABC because their corresponding angles are equal. So by AAA criterion both the triangles are similar. See, angle A is equal to angle A because it is common. Angle D is equal to angle B. See here, it is okay. Angle E is equal to angle C. Yes, and hence both the triangles are similar. And if two triangles are similar, their ratio of their corresponding sides must be equal. This is from definition of similarity of two triangles. दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो corresponding sides का रेशियो बराबर होगा. इसका corresponding side AD और इसका AD का corresponding side इधर AB, AD by AB इक्वल होगा इसका AE बाई इसका AC, है क्या? ये AD और AB कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, तो इसका रेशियो इक्वल टू होगा AE बाई AC, इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, ये दोनों रेशियो बराबर होगा. DE बाई BC भी बराबर होगा, तो ये जरूरत नहीं है, उसको नहीं लिए, ये है. अच्छा, ये तो सिमिलरिटी का डेफिनेशन से हुआ. दिस कैन बी रिटन एज AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE, ऐसा भी लिख सकते हैं ना. आप दोनों में माइनस कर दीजिए 1 1, तो ऊपर होगा AB माइनस AD, AB माइनस AD, देन इट विल गिव्स यू BD, तो ये आपका हो जाएगा BD बाई AD. और ये क्या हो जाएगा AC माइनस AE, AC माइनस AE इक्वल टू हो जाएगा EC, ये हो जाएगा EC बाई AE. अब आप इसको लिख सकते हैं AD बाई BD इक्वल टू EC बाई AE. देखिए तो क्या मिला, AD बाई BD इक्वल टू EC, इसको भी उलट दीजिए इधर, ये भी तो ऊपर चला जाएगा ना, AE विल गो अप, AE बाई EC. So what we are getting, AD by DB equal to AE by EC. This is what is your Thales theorem. So in this way we can prove Thales theorem. Okay, its converse is also true. अगर ये रेशियो बराबर है, if these ratios are equal, then both the triangle, ये अगर रेशियोज बराबर हैं तो फिर ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे और ये लाइन BC का पैरेलल होगा. ये है आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. लेट अस सी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. इफ DE line is parallel to BE, then this ratio will happen. If this ratio happened, then these two line must be parallel. देखिए तो अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट, ये लेट है, मान रहे हैं ये कि AD बाई DB इक्वल टू है AE बाई EC. ऐसा हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि AD बाई DB और AE बाई EC ये रेशियो इक्वल है. तो प्रूफ क्या करना पड़ेगा,
प्रूफ करना पड़ेगा तब कि ये DE जो लाइन है ये पैरेलल होगा BC का। दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स थेल्स थ्योरम का उल्टा। थेल्स थ्योरम में था ना कि ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो बराबर होगा। अब ये रेशियो को बराबर ले रहे हैं तो ये लाइन को पैरेलल प्रूफ करेंगे। सो लेट अस सी इफ दिस रेशियो इक्वल हाउ दिस लाइन विल बी पैरेलल, दैट इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, सी व्हाट इज गिवन। ये आपको दिया हुआ है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये दिया हुआ आपको इक्वल है। ओके, ये अगर इक्वल है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं BD बाई AD इक्वल टू EC बाई AE, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। दोनों को उलट दिए, इधर +1 कर लीजिए, इधर +1 कर लीजिए। तो देखिए BD प्लस AD, ये BD प्लस AD मिलके हो गया AB, तो आपको मिल जाएगा ये AB बाई AD एंड दिस साइड EC प्लस AE, EC प्लस AE हो जाएगा पूरा AC, AC बाई AE, ये हो जाएगा। आप इसको ऐसा लिख लीजिए AD बाई AB, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, विल बी इक्वल टू देन AE बाई AC। देखिए क्या मिला, AD बाई पूरा AB इक्वल टू AE बाई AC। ओके, ये छोटा ट्रायंगल देखिए ADE और ABC में इसका AD और AB का रेशियो इक्वल है, और AE और ये बड़ा ट्रायंगल का AC का रेशियो इक्वल है, और ये एंगल A तो दोनों के लिए कॉमन है। सो बाय SAS क्राइटेरियन यहां पर यूज होगा, SAS क्राइटेरियन से ये छोटा ट्रायंगल ADE और ये बड़ा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ADE ए कॉन्ग्रुएंट नॉट सॉरी सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ADA सॉरी ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का। नहीं, ये AD और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB का रेशियो और AE और उस बड़ा ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC का रेशियो इक्वल है। दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और बीच का एंगल A दोनों के लिए कॉमन है। तो SAS क्राइटेरिया से ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। एंड इफ दिस स्मॉल ट्रायंगल एंड दिस बिग ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन एंगल D मस्ट बी इक्वल टू एंगल B, ये इसके बराबर हो जाएगा। एंगल E मस्ट बी इक्वल टू एंगल C, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो व्हेन these two angles are equal, these two angles are equal means corresponding angles are equal, then line must be parallel. So in this way we can prove converse of Thales theorem. Okay, so you have understand Thales theorem, its proof, converse of Thales theorem and its proof. ठीक है, अच्छा, then after we read few more very important result. देखिए, any quadrilateral समझते हैं, in a plane figure bounded by four lines is called a quadrilateral. Let us suppose A, B, C, D is a quadrilateral. Let us take their middle point. Its middle point is P. Its middle point Q, R, S. P, Q, R, S are the middle points of AB, BC, CD and AD respectively. Then if you join this middle point, ये middle point को अगर मिला लेते हैं तो this will be a parallelogram. ये जो बनेगा P, Q, R, S is a, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ गए कैसे? देखिए, आप अगर इसको मिला लेते हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल,
क्यों? ये देखिए, ये ट्रायंगल लीजिए, इस ट्रायंगल में दिस बाय दिस कितना होगा? 1, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है ना, तो BP बाई PA इज इक्वल टू 1 एंड BQ बाई QC व्हाट विल बी? ये भी 1 होगा क्योंकि ये Q मिडिल पॉइंट है। सो BP बाई PA इज इक्वल टू BQ बाई QC, रेशियो बराबर है, तो फिर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा थेल्स थ्योरम से, समझ गए? वैसे यहाँ दिस बाय दिस 1 होगा और दिस बाय दिस भी 1 होगा, यानी ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम है, तो थेल्स थ्योरम से ये पैरेलल होगा इसका, नहीं? तो ये पैरेलल है इस लाइन का, ये पैरेलल है इस लाइन का, तो फिर ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल होगा, नहीं क्या? सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। इन द सिमिलर वे, उसी तरह से अगर आप BD को ज्वाइन कर लेते हैं, then this line will be parallel to this and this line will also be parallel to this and hence these two are also parallel. अब ये जब पैरेलल हो जाएगा इसका और ये पैरेलल हो जाएगा इसका, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। या ऐसे आप कर सकते हैं, देखिए ABC, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये AB का मिडिल पॉइंट है और ये QBC का मिडिल पॉइंट है, एक ट्रायंगल है ABC. Suppose D is the middle point of AB and E is the middle point of AC. मिडिल पॉइंट मतलब ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है, तो ये DE जो होगा ना, DE ये हमेशा पैरेलल होगा BC का, एंड दिस DE इज ऑलवेज हाफ ऑफ BC, BC का आधा होगा और पैरेलल भी होगा। ये एक रिजल्ट है, शायद क्लास 9 वगैरह में था ये। तो ये ट्रायंगल ABC में देखिए, ये इस साइड का मिडिल पॉइंट है, Q इस साइड का मिडिल पॉइंट है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऐसा है, तो ये इसका पैरेलल होगा, उसी तरह से ये इसका पैरेलल होगा। फिर अब इधर से ले लीजिए, तो ये इसका पैरेलल होगा और ये भी इसका पैरेलल होगा, तो फिर ये दोनों पैरेलल होगा। तो ऑपोजिट साइड जब पैरेलल हो जाते हैं तो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है ऐसा है, ये सब का मिडिल पॉइंट को अगर मिला लें ऐसा, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। नाउ लेट अस सी फ्यू मोर रिजल्ट्स। These things already discussed in previous videos, है ना। प्रीवियस वीडियो में सब बताया गया है, फिर भी एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं जो जो रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं। एक है कि एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम समझते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक साइड अगर पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम बोलते हैं इसको, ये अगर इसके पैरेलल है तो एक ऑपोजिट साइड्स का पेयर जो है वो पैरेलल होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम। सो इफ इट इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, AC and BD are called its diagonals, and suppose this point of intersection is O. If ABCD is a trapezium, then AO by OC और BO by OD ये हमेशा बराबर होगा। अगर ABCD ट्रेपीजियम है तो फिर AO by OC और BO by OD हमेशा बराबर होगा। मीन्स डायगोनल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। ये प्रोपोर्शनली माने ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो सेम होगा। कैसे, इसको प्रूफ करने के लिए यहां से आप एक लाइन खींच दीजिए ऐसे OE। क्या करेंगे आप,
ओ ई लाइन लेंगे जो पैरेलल होगा ए बी का। ए बी का पैरेलल यहां एक लाइन खींच दीजिए। इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू ए बी देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू डी सी ऑल्सो। अगर ये लाइन हम ए बी का पैरेलल खींचे हैं तो इस डी सी का भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये तो ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम है तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अच्छा नाउ इफ दिस इज पैरेलल टू ए बी, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल, इसमें देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं, बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी, ये ट्रायंगल लिख रहे हैं। ये इसमें दिस बाय दिस इक्वल टू होगा दिस बाय दिस, ए ई बाई ई डी, ये होगा ना। अच्छा, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल देखिए, इधर से देखिएगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू होगा ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी, ये हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। देखिए ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा ना, ये तो क्या मिलेगा, ओ डी बाई बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी इक्वल टू होगा ए ओ बाई ओ सी, ओ बाई ओ सी, ये तो प्रूफ करना था। सो वी कैन से इन ए ट्रेपीजियम योर डायगोनल डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। अगर ये ट्रेपीजियम है तो ए ओ बाई ओ सी और बी ओ बाई ओ डी इक्वल होगा, और ये रेशियो अगर इक्वल है तो फिर ये ट्रेपीजियम होगा। इसका कन्वर्स भी ये ट्रू है। वो कैसे, जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका उल्टा, इसका उल्टा देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ट्रेपीजियम है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये ट्रेपीजियम है, एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिगर थोड़ा उस टाइप का बन गया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसका डायगोनल है ये AC और BD, इस तरीके से है डायगोनल कि AO बाई OC और BO बाई OD इक्वल है, इट इज गिवन, ये दिया हुआ। देन व्हाट विल हैपन, ABCD मस्ट बी ए ट्रेपीजियम। अगर ये रेशियो इक्वल है तो ABCD ट्रेपीजियम होगा। ट्रेपीजियम होगा मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा, ये आपको दिखाना। तो इसके लिए भी फ्रॉम O ड्रॉ ए लाइन OE, OE इज ड्रॉन पैरेलल टू AB। ये AB जो लाइन है उसके पैरेलल हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। और पैरेलल लाइन अगर खींच दिए तो ये देखिए AE बाई ED इक्वल टू हो जाएगा तब BO बाई OD। नहीं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल खींच दिए हैं तो फिर AE बाई ED इक्वल टू होगा BO बाई OD। ये तो थेल्स थ्योरम से हो गया। और BO बाई OD दिया हुआ है, ये इक्वल होगा OA बाई OC से। तो हम लोग को क्या मिला, ये दोनों इक्वल मिल गया। AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC। ये देख लीजिए, ये वाला ट्रायंगल अब देखिए, आप उधर मत देखिए। इस ट्रायंगल में AE बाई ED इक्वल टू AO बाई OC, व्हाट डज इट मीन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो इससे ये हो जाएगा कि आपका ये जो EO है वो पैरेलल हो जाएगा BC का। हम लोग ये EO पैरेलल लिए थे किसका, AB का, और ये पैरेलल हो गया, सॉरी BC नॉट, ये DC है ना, ये लाइन इसका पैरेलल होगा DC, ये पैरेलल होगा DC का। EO was taken parallel to AB
but we are getting EO is parallel to DC. It means this line and this line are also parallel, and hence ABCD is a parallelogram. So in this way, if diagonal divides proportionally, then it must be a trapezium, and if there is a trapezium, its diagonal must divide each other proportionally. ये है आपका रिजल्ट. इसके बाद जो रिजल्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लें. There is a triangle. एक ट्रायंगल है A B C. Okay, this is angle A. AD is suppose bisector of angle A. What is AD? AD is bisector of angle A. एंगल ए का बाइसेक्टर है. एंगल ए का बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है. बाइसेक्टर समझते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन. इफ एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ये बीडी बाई डीसी, ये बीडी और डीसी का जो रेशियो है ये इक्वल टू होगा ए बी बाई ए सी. दिस इज व्हाट इज योर रिजल्ट. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. अगर एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, तो ये बीडी और डीसी का रेशियो इक्वल टू होगा ए बी और ए सी का रेशियो. इसका उल्टा भी ट्रू है. अगर ये बीडी और डीसी का रेशियो इक्वल टू ए बी बाई ए सी है, तो फिर ये जरूर बाइसेक्टर होगा एंगल ए का. दोनों साइड से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. तो लेट अस सी फर्स्ट. लेट एडी इज बाइसेक्टर. मान लिए कि एडी बाइसेक्टर है, तो ये रेशियो इक्वल होगा. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है. इसके लिए आप क्या कीजिए, सिंपल ये जो एडी है ना, इसका पैरेलल यहां से एक लाइन खींच लीजिए. ऐसे एडी का पैरेलल सी पॉइंट से लाइन खींचा जा सकता है ना. ओके. और इसको बढ़ा दीजिए ऐसे. इस पॉइंट को आप ले लीजिए ई. ओके. इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, देन दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस, because corresponding angle. Okay, and this angle will be equal to this alternate angle. ये ऐसे दो लाइन अगर पैरेलल है, ये तीसरा है, तो these are called alternate angle, and these alternate angles are also equal. So इसलिए ये एंगल इसका बराबर होगा. अल्टरनेट एंगल है ये दोनों, और ये एंगल इसका बराबर होगा. तो फिर ये एंगल तब इसके बराबर होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है. ये दोनों इक्वल है. इसका इक्वल ये है, इसका इक्वल ये है, तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल होगा. एंड इफ दीज टू आर इक्वल, देन दिस साइड आर इक्वल. एक ट्रायंगल में, इन ए ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, देयर ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, इसका ऑपोजिट साइड, इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा. तो उसी से ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, तो ये ए सी और ए ई इक्वल होगा. ठीक है. ठीक है. तो अच्छा, अब देखिए ये पूरा बड़ा ट्रायंगल देखिए. अब ई बी डी, ई बी सी, इस पूरा बड़ा ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. ठीक है. पैरेलल है तो इधर से बी ए बाई ए ई इक्वल टू होना चाहिए था बी डी बाई डी सी. ये कहां से? थेल्स थ्योरम से. नाउ बी ए बाई ए ई को आप लिख सकते हैं ए सी, क्योंकि ये तो हम लोग दिखाए ना कि ये दोनों इक्वल है. इक्वल टू बी डी बाई डी सी. यही तो प्रूफ करना था कि बी डी बाई डी सी और ए बी बाई ए सी इक्वल होगा. ए बी और बी ए सेम. So in this way, if AD is bisector, then BD by DC will be equal to AB by AC.
its converse is also true. Let us see its converse. Understand? I hope you have understood this. Let us see its converse. इसका कन्वर्स देखिए, कन्वर्स क्या है? See, there is a triangle A, B, C. D is a point. I am not saying AD is bisector of angle A. ये नहीं बोल रहे हैं कि AD bisector है एंगल A का. D एक पॉइंट है BC पर, ये AD एक लाइन है. इस तरह से है कि BD बाई DC और AB बाई AC इक्वल है. हम लोग ये मान रहे हैं इसको, लेट कि BD बाई DC एंड AB बाई AC आर इक्वल. देन दिस लाइन मस्ट बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. तब ये लाइन जरूर एंगल ए का बाइसेक्टर होगा. ये आपको प्रूफ करना है, मतलब ये दोनों एंगल को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा. ये रेशियो अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, मतलब एडी बाइसेक्टर होगा. ठीक है. ये कैसे? ये जो बी ए है ना, इसको आप बढ़ा दीजिए अपने से, एक पॉइंट ई तक बढ़ा दिए. इस तरह से बढ़ाए, ये हम लोग जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं. यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक बढ़ा सकते हैं. कितना बढ़ाएंगे? इस तरह से बढ़ाएंगे कि ये लेंथ इसके बराबर हो. ये लंबाई नाप लेंगे, जितना है AC उतना इधर बढ़ाएंगे. We produce BA to the point E such that AE and AC are equal. समझ गए बात? अब इसको मिला दीजिए. हम नहीं कह रहे कि इसके पैरेलल हो गया, इसको मिला दिए खाली. ठीक है. अच्छा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन BD बाई DC इक्वल टू AB बाई BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC. ये तो दिया हुआ है ना. अब इसको AB बाई AC के बदले हम लोग लिख सकते हैं ना AE, क्योंकि ये AC के बराबर है AE. तो हम लोग बोलेंगे कि तब ये दोनों इक्वल हो गया. BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AE. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया. फिर किससे? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से. इफ दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, then this line and this line must be parallel. This is what is converse of Thales theorem. अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो गया तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा. ठीक है. देखिए ये एंगल इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. इतना हुआ. ये दोनों बराबर है. क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है. एक ट्रायंगल में मान लीजिए कि ये साइड इसके इक्वल है, तो फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है. उसी से ये दोनों साइड तो हम लोग बराबर लिए हुए हैं ना, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा. अब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा. एंड इफ दीज टू आर इक्वल देन AD मस्ट बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. So in this way we can say yes, if BD by DC equal to AB by AC, then AD must be bisector of angle A. So in this way these results can be proved, and all these results you have to keep in your mind. So ये सारा रिजल्ट तो पहले बताया गया है पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 में. तो ये सारा रिजल्ट को ये पार्ट 7 में एक बार रिवाइज कर दिया ताकि ये सारा रिजल्ट दिमाग में रहे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके. सो इन दिस वीडियो यू कीप दिस मच. इन पार्ट 8, in the next part we discuss more results based on similarity of triangles. So in this video this much. Thank you for watching.